A very good morning, I'm Jain, my dear tiny tots. Today we are going to study the word problem. Alright, so everybody take out your notebooks fast, quickly, and we are going to do the word problem. So today I will be teaching you three questions as a classwork and one question I'm going to give you for homework. So that you have to do by your own. एक question आपको अपने से करना है. Okay? So let's start. I have to explain the questions also, so I'm not going to waste the time. So let's start. All right. So first of all, everyone note down the heading, that is word problem. Right here, solve the following. You can write like this also. Solve the following. Or you can write word problem also. Okay, this is classwork. Here we have to write date. Now the first question. पहला question क्या है? I'm writing here. Mummy gave me rupees 40 and daddy gave me rupees 25. Okay, how much money do I have? मेरे पास कितने पैसे हैं? ठीक है. So what does it means? Mummy gave me 40 rupees and daddy gave me 25 rupees. How much do I have? Now I'm going to explain it over here. Fine. So mummy gave how much? Rupees 40. Daddy gave how much? Daddy ने कितना दिया? Rupees 25. So मम्मी ने 40 rupees दिया, पापा ने 25 rupees दिया. क्वेश्चन पूछा हाउ मच मनी डू आई हैव, मेरे पास अब कितने पैसे हैं. ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली ऐड दीज टू. क्यों ऐड करेंगे? बिकॉज मम्मी ने इतना दिया है, डैडी ने इतना दिया है, तो दोनों का मिला के मेरे पास कितना हो गया. राइट, अंडरस्टूड. सो हियर यू हैव टू डू लाइक दिस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट the solution part. I'm going to write here solution. The way you have to do, leave one line and then start from here. Mummy gave, make small sentences always. Okay, mummy gave me rupees 40. Okay, then daddy gave me rupees 25. Okay, now I have, last में क्या होगा? I have, मेरे पास कितना है? How we will be knowing? We have to add. So now rupees will be here. पहले हम पैसा करेंगे. We have 0 0, so just write down. Now 5 plus 0 is 5. 4 plus 2 is how much? 6. So how much money I have? That is rupees 65. Okay, so अब आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर, I have rupees 65. Okay, I have rupees 65. ठीक है. So this was the first question. I hope it is clear to you. Like मम्मी ने दिया 40 rupees, डैडी ने दिया 25. What we have done? We have done the addition to know that how much the boy or a girl has. Right? So you can see here कितना था? 40 rupees and 25. We have just added it. Okay, so now let's do the next question. ये था first हमारा class work. सबसे पहले आपको ऐसे ही करना है and here you will write the solution like this. Okay, let me write down. ऐसे आप इसको solution ऐसे लिखोगे. Okay, question 1 then solution after leaving one line. Okay, now I'm going to write the next question. This was question number 1. Now in the next page, ठीक है, एक पेज में एक क्वेश्चन. इन द नेक्स्ट पेज आई एम राइटिंग द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज आई बॉट पेंसिल. एवरीबडी राइट डाउन. आई बॉट, BOUGHT, बॉट मीन्स खरीदा. आई बॉट पेंसिल. ओके, आई बॉट पेंसिल फॉर, कितने की खरीदी है मैंने?
rupees 7.50, दैट मीन्स 7 रुपीज़ 50 पैसे, कॉमा और क्या खरीदा मैंने, इरेजर, इरेजर फॉर ₹3, 3 रुपीज़ का मैंने क्या खरीदा है, इरेजर, एंड कॉपी फॉर, कॉपी या नोटबुक यू कैन राइट, अ कॉपी फॉर रुपीज़, कितने की कॉपी है, 30, ओके, इट इज़ ऑफ 30 रुपीज़, ओके. So let me clear it out. Copy for ₹30, and now how much, question क्या बोल रहा है, how much money did I spend, money did I spend means मैंने कितना खर्चा किया, ठीक है. मैंने कुछ चीज़ें सामान खरीदी हैं तो मैंने क्या किया है, खर्चा किया है, राइट, मैंने एक्सपेंस किए हैं. सो अब वो एक्सपेंस कितना हुआ, सो दैट वी हैव टू फाइंड आउट कि कितना एक्सपेंस हुआ, कितना मैंने शॉपकीपर को दिया या मैंने कितना खर्चा टोटल किया. सो फॉर दैट वी हैव टू राइट सॉल्यूशन हियर, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है. आई बॉट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पर्सन, ही इज़ अ बॉय और गर्ल. अब ये शॉपिंग करने गया मार्केट में, ठीक है, ठीक है, उसने शॉपिंग करने गया, उसके पास कुछ पैसे थे वो लेके. अब उसने क्या क्या चीज़ें खरीदी, एक उसने क्या खरीदी, पेंसिल, क्या खरीदा, पेंसिल, ठीक है. वो पेंसिल कितने की थी, दैट इज़ ऑफ ₹7.50. नाउ अगेन ही बॉट वन इरेजर ऑल्सो, ओके, eraser also, that eraser is of ₹3, okay. He purchased, or if we talk about ourselves, that I have purchased one notebook, ठीक है, एक कॉपी भी खरीदी है मैंने, ओके, नोटबुक या उसको हम कॉपी भी बोलते हैं. सो दैट इज़ ऑफ ₹30, मैंने इतने का सामान खरीदा या आपने इतने का सामान खरीदा. सो नाउ हाउ मच मनी डिड आई स्पेंड, इतना सब खरीदने के बाद मैंने कितना खर्चा किया, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रुपीज़, यहाँ लिखेंगे पैसे, ठीक है. 7 रुपीज़ 50 पैसे, 3 रुपीज़ एंड हियर 30 रुपीज़. इनको क्या करेंगे हम, add to know how much we have expensed. So let's do it. Okay, now let's do the solution here. कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखोगे, I bought pencil for, यहाँ पे हम लिखेंगे रुपीज़. आप चाहो तो यहाँ पे रुपीज़ पैसा ऊपर भी लिख सकते हो, ओके. सो आई एम गोइंग टू डू लाइक दैट ओनली. यहाँ पे रुपीज़, यहाँ पे पैसे, सो दैट इज़ ऑफ ₹7.50, and this is of ₹3. Next eraser, then we have 30 rupees copy, okay. Then eraser for and copy for. Now what we have to do, how much he has expend. So total money, यहाँ पे होगा total मनी किसने स्पेंड की, आई. टोटल मनी आई स्पेंड मतलब मैंने कितना खर्चा किया. टोटल मनी आई स्पेंड इज, अब क्या करना है इसको हमें ऐड, 0 0 0 इज 0, 5 + 0 + 0 इज 5. नाउ यहाँ पे डेसिमल, 7 + 3 हाउ मच, 10, कैरी 1. सो दैट मीन्स आई हैव एक्सपेंडेड, हाउ मच आई हैव स्पेंड, 40 रुपीज़ एंड 50 पैसे. सो आंसर कैसे लिखेंगे, आई स्पेंड ₹40.50. गॉट इट, इजंट इट ईजी. आपको बस क्वेश्चन को समझना है कि किस क्वेश्चन में प्लस करना है, किस क्वेश्चन में माइनस करना है, राइट. सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, and then after that, after third question, fourth question will be your homework. I am going to give you one homework. Clear? Now let's start the next question. Question number 3 is, let me write down, yes,
आई गैव मैंने दिया, आई गैव ₹80 टू द शॉपकीपर, टू द शॉपकीपर। मैंने कितना दिया शॉपकीपर को? ₹80। ओके, आई बॉट, और मैंने क्या खरीदा वहाँ से, शॉपकीपर से मैं कुछ खरीदूंगी। आई बॉट स्वीट्स, स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ। ओके, स्वीट्स फॉर, इन स्वीट्स वी कॉल टॉफीज ऑल्सो, या मिठाइयाँ दोनों ही स्वीट्स में आएंगे। स्वीट्स फॉर ₹50, ₹50 के स्वीट्स खरीदे। हाउ मच मनी विल आई गेट बैक, कितना हम मुझे वापस मिलेगा। आई गेट बैक, कितने पैसे मुझे वापस मिलेंगे, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हियर वी विल बी राइटिंग दी सॉल्यूशन, बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस दिस। ओके, लेट मी इरेज दिस नाउ। ठीक है, आई गेव, मैं शॉपकीपर के पास गई, मैंने उसको ₹80 दिए। ठीक है, एंड क्या खरीदा मैंने वहाँ से? स्वीट्स। कितने रुपीज़ की? ₹50 की। स्वीट्स मीन्स, इन स्वीट्स का टर्म होता है टॉफ़ी ऑल्सो, और मिठाइयाँ भी, लाइक एनी मिठाई। ओके, सो आई हैव परचेज। सो नाउ हाउ मच द शॉपकीपर विल रिटर्न, मैंने शॉपकीपर को ₹80 तो दे दिया था। अब शॉपकीपर के पास ₹80 और मैंने इतने का खरीदा, तो अब शॉपकीपर मुझे कुछ वापस भी तो करेगा। कितना वापस करेगा? दिस इज मी या आई, दिस इज शॉपकीपर। ठीक है, शॉपकीपर को मैंने ₹80 दे दिया और ख़रीदा क्या? स्वीट्स। देन शॉपकीपर ने ₹80 लिया और स्वीट्स के पैसे काट के बाकी जो बचा वो मुझे दे दिया। ठीक है, सो कितना वापस आया मेरे पास? 8 - 5 इज हाउ मच? 3। तो दैट मीन्स मुझे ₹30 वापस मिल गए, राइट? सो दैट मीन्स वी हैव टू डू हियर व्हाट? सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। I gave टू शॉपकीपर, मैंने शॉपकीपर को कितना दिया? ₹80। शॉपकीपर ₹80। देन आई बॉट, क्या खरीदा? स्वीट्स। आई बॉट स्वीट्स कितने की? फॉर ₹50। ओके, नाउ let me write in proper sequence. Now next step, I got back, मुझे कितना वापस मिला? I got back, कितना वापस मिला? I have find it out, ₹30। कितना वापस मिला? ₹30। so answer will be I got back ₹30। ओके, इतना पैसा उसे वापस मिला। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। लेट मी शो यू योर होमवर्क क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन फॉर होमवर्क। सीता हैड ₹75 in her piggy bank. Piggy bank means गुल्लक। आउट ऑफ दैट शी स्पेंड, उसमें से उसने कुछ खर्चा किया। ठीक है, शी स्पेंड ₹50, उसने ₹50 क्या किए? खर्च कर दिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, कितने पैसे उसके पास बचे हैं। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व। पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले ये समझो। ठीक है, सीता के ये गुल्लक है, गुल्लक में उसके ₹75 थे, उसने ₹50 क्या किए? खर्च कर दिए। अब उसके पास कितना बचा ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? आई हैव एक्सप्लेन द क्वेश्चन, नाउ इट विल बी ईजियर फॉर यू टू सॉल्व, राइट?
अब आप इसको बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो. बट बिफोर दैट कंप्लीट योर वर्क. ओके, here you can write like this also. I got ₹30 बैग. ऐसे भी लिख सकते हो 30 बैग. ऐसे भी लिख सकते हो I got ₹30 बैग, या फिर I got back ₹30. Clear? So this is your today's work. Question number 1, mummy gave me. ठीक है. Then second question, I bought pencil. Then third question, I gave ₹80. ये सारे क्या हैं आपके क्लास वर्क. 3 questions क्या हैं आपके क्लास वर्क. Now after that you have one question homework. This you have to do by your own, right? अपने से इसको note down करने. Make small sentences like Sita had इतना, फिर she spent इतना, money left कितना बचा. बस ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप क्रिएट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. आफ्टर लिविंग वन लाइन, यहाँ पे सॉल्यूशन, फिर यहाँ पे सम्स रहेगा आपका लाइक रुपीज एंड हियर आंसर. इन दिस वे जैसे कराया क्लास वर्क वैसे ही सेम वे में होमवर्क करना है आपको. ओके, सो एज वी हैव कंप्लीटेड टुडे द वर्ड प्रॉब्लम, राइट. आज हम लोग ने वर्ड प्रॉब्लम भी कर लिए. 3 क्वेश्चन क्लास वर्क, 1 होमवर्क, राइट. सो नाउ you can see in your book that I was discussing about that day, page number 159. there are many more word problems. इसी टाइप के word problems है. So you can do it for practice in book. book में ही उसको practice करने के लिए आप कर सकते हो, so that आपका mind clear होगा कि कब add करना है, कब subtract करना है. So try to solve in book. सब लोग अपने से करेंगे उसको book में. Clear? For practice. एंड गेट इट चेक बाय योर पेरेंट्स. आप उनको दिखा देना कि आपने सही किया है या गलत. जब भी ऐसे टर्म्स आते हैं, आई गेट बैक, हाउ मच इज लेफ्ट, ये सारे टर्म्स जब आए तो इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ जब हम ऐसे बोलते हैं हाउ मच डू आई हैव इन टोटल, जब हम टोटल की बात करते हैं, या हाउ मच डिड आई स्पेंड टोटल, हाउ मच मनी डू आई हैव, इस टाइप के जब टर्म्स आते हैं कि कितना मेरे पास है टोटल, इस टाइप से, तो वहाँ पे एडिशन होता है. और जब लेफ्ट बच रहा है, कितना बचा, आई गेव इतना, आई स्पेंड इतना, हाउ मच इज लेफ्ट विथ मी, राइट. इस टाइप के जब टर्म्स आते हैं तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है. ये 2 चीज़ आपको माइंड में क्लियर रखनी है, एंड देन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ट्राई टू डू पेज नंबर 159 in your book and complete your notebook work. So now our money chapter is completed. We have only data handling left, so that we are going to do next week on Monday. Clear? Be ready for that. And that much for today only. इतना ही है. Do the work in a good handwriting and start practicing more and more, right? So bye bye, take care, have a nice day students.